Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your chapter 8 Earthquakes. In this chapter, today we discuss the main topic, that is the causes of earthquakes. Okay, so first of all, what is the earthquakes? We already discussed in the last video what is the earthquakes. Okay, so earthquake means tremor and vibration in the crust of the earth are called earthquakes. Means when suddenly हमारी अर्थ का जो अपर मोस्ट पार्ट है वो शेकिंग करना स्टार्ट करता है, ये ट्रिमिंग करना, ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट करता है, उसी को बोलते हैं हम earthquakes. And what causes are there to originate the earthquakes? We discuss here in this video causes of earthquakes. Okay, so the crust of the earth is unstable. Crust means we already discussed in the sixth chapter. There are three types of earth structure. First is crust, second is mantle, or third is core. Okay, so that time we already discussed कि uppermost part, the crust layer is very hard portion. Okay, and just see here, this is your earth surface, or when we move deep into the earth your temperature always increase. Okay, so due to that high temperature की वजह से ये rocks in melt position in deep inside the earth. Okay, means हमारी earth का जो uppermost part है it is a solid part, but deep inside the earth it in melt position. Okay, due to that your hard portion always floating on the melt rock. कि नीचे जो मेल्ट रॉक है उसके ऊपर आपका जो हार्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस है ये फ्लोटिंग करता है, और फ्लोटिंग की वजह से ऑलवेज ये मोशन में रहता है, मूवमेंट करता रहता है. ओके, सो crust of the earth is unstable, वो स्टेबल नहीं है. ओके, earthquakes experienced in different parts of the world are example of instability of earth crust. कि मीन्स हमारे अर्थ सरफेस के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट होते हैं, उसके पीछे जो मेन कॉज है वो है क्रस्टल इंस्टेबिलिटी. इंस्टेबिलिटी वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल. ओके, सो a large number of earthquakes occur every year. However, we do not feel all of them due to a number of reasons. In the whole part of the earth, different area में different type of earthquakes are originated, but out of that we do not feel all of them. Okay, और उनके पीछे कॉज क्या है? a number of reason. First के some of the earthquakes may occur in far off place. Suppose we are living in this place and some earthquakes are originate far from us. बहुत दूर से originate होते हैं, और due to that इनका जो impact है very less हमारे एरिया पर देखने को मिलता है. ओके, ड्यू टू दैट वी कांट फील. कि मीन्स कुछ अर्थक्वेक ऐसे होते हैं जो हमारे प्लेस से बहुत दूर औरते हैं, फॉर मीन्स अवे, दूर. ठीक है, ड्यू टू दैट हम वो फील नहीं कर पाते. ओके, सो वही हम फर्स्ट पॉइंट लिखा कि सम ऑफ द अर्थक्वेक्स मे अकर इन द फार ऑफ प्लेस एंड देयर इंपैक्ट मे नॉट बी फेल्ट. हम उसको फील नहीं कर पाते हैं. ओके, एंड सम माइनर अर्थक्वेक्स occurring at night might also go unnoticed by us. कि some earthquakes जो minor होते हैं, little bit shaking होती है हमारी अर्थ, so night time होती है, that time हम उसको feel नहीं कर पाते. okay, तो उसके पीछे number of cause हैं. okay, so we discuss here one by one. Basically three main causes there earthquakes. First is crustal instability, second we discuss here volcanic eruption, or third is disturbance of crustal balance. Basically there are three main causes. First is crustal instability, second is volcanic eruption, और third one disturbance of crustal balance. और वन बाय वन अब थ्री को डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट पॉइंट crustal instability. Crustal instability is one of the major factor responsible for the earthquake. कि हमारे earthquakes ऑरिजिन होने का सबसे बड़ा जो कॉज है वो है crustal instability. ओके, कि जो हमारा अपर मोस्ट पार्ट है वो हार्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस है, ये ऑलवेज मोशन में है, फ्लोटिंग करता है. कहाँ पर?
on the melt rock deep inside the earth, because when we move deep inside the temperature increase, अभी already discuss कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से रॉक मेल्ट पोजीशन में है और उसके ऊपर जो ये हार्ड पोर्शन ऑफ रॉक है ये फ्लोटिंग कर रहा है, ओके उसकी वजह से भी समटाइम बाय अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट होते हैं। कैसे होते हैं वी डिस्कस हियर वन बाय वन, ओके। सो अर्थक्वेक्स आर caused by the movement of earth outer layer, आउटर मीन्स अपर पार्ट जो सॉलिड पार्ट है, और अपर पार्ट में मेंशन करते हैं क्रस्ट और अ पोर्शन ऑफ द अपर मेंटल। हमने डिस्कस किया कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट है क्रस्ट, सेकंड मेंटल और कोर। क्रस्ट पूरी तरह है सॉलिड फॉर्म में, ओके और मेंटल का अपर पार्ट जो है वो सॉलिड है और डाउनवर्ड पार्ट जो है वो मेल्ट है, ओके और नीचे भी मेल्ट पोजीशन में, ओके। सो मींस जो अपर मोस्ट पार्ट है सॉलिड पार्ट, इसमें क्रिस्टल और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल आता है, ओके। सो इसकी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट हो रहे हैं। तो अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ आउटर लेयर, आउटर मींस क्रिस्टल और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, ओके जो सॉलिड पार्ट है वी कैन सी। सो द आउटसाइड लेयर ऑफ द अर्थ इज split into tectonic plate, split means to divide into tectonic plate which are moved slightly due to the movement of magma in the layer below। कि मीन्स जो आउटर लेयर है और आउटर जो लेयर है वो डिवाइड है हमारी टेक्टोनिक प्लेट में। वी ऑलरेडी डिस्कस की डिफरेंट टेक्टोनिक जैसे लाइक यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, ऑस्ट्रेलियन, लाइक दिस सो मेनी प्लेट्स मींस अ ह्यूज लैंड स्लैब लाइक अ पीस ऑफ लैंड, एक ह्यूज लैंड ऑफ पीस, ओके। इसमें डिवाइडेशन हमारी अर्थ, ओके और यही सारे पोर्शन मूवमेंट करें कहाँ पे मैग्मा के ऊपर इन द लेयर बिलो। इस लेयर के नीचे क्या है मैग्मा है, मोल्टन रॉक है, पिघली हुई रॉक्स हैं ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। उनके ऊपर ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये ह्यूज जो लैंड स्लैब हैं ये मूवमेंट कर रहे हैं, ओके। सो फर्स्ट डिस्कस है कि सबसे बड़ा जो कॉज हुआ है क्रिस्टल इंस्टेबिलिटी, ओके। सेकंड में डिस्कस हियर कि अपर मोस्ट पार्ट में मूवमेंट हो रही है, कौन सा अपर पार्ट क्रिस्टल और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, ओके। अब वो मूवमेंट कैसे करा ड्यू टू द मैग्मा, बिकॉज डीप इनसाइड द अर्थ के है आपका रॉक जो है मेल्ट पोजीशन में है, ओके मॉल्टन पोजीशन में है, ड्यू टू दैट योर हार्ड पोर्शन ऑलवेज मूवमेंट कर रहा है, वी डिस्कस इन दिस पार्ट, ओके। सो नाउ दिस कॉज प्लेट टू सिक्यूज टुगेदर और मूव अपार्ट। सिक्यूज मींस टू प्रेस समथिंग हार्ड, मींस ये टू प्लेट्स होती हैं सम टाइम क्या करती है फेस टू फेस वर्क करती हैं, और जब दोनों आपस में कोलैप्स होंगी तो दैट टाइम earthquakes are originate, या sometime these two places move apart to each other, apart means जब एक दूसरे से दूर जाना है, okay means this cause plate to squeeze together, move apart and slide alongside to each other। sometime ये up and down slide हो जाती हैं, sometime face to face squeeze होती हैं, sometime अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो ड्यू टू दैट एक फोर्स ऑरिजिनेट होती है, ओके तो उसी के थ्रू हमारे जो अर्थक्वेक से वो ऑरिजिनेट होते हैं, ओके। सो रॉक आर मेड ऑफ इलास्टिक मटेरियल। अब जो डीप इनसाइड द अर्थ जो है थोड़ा सा हम डीप जाएंगे, वी से अपर पार्ट ऑफ मेंटल, वहाँ हमारी रॉक जो है इलास्टिक मटेरियल की बनी है। इलास्टिक मटेरियल मीन्स लाइक अ रबड़, ओके कि मीन्स जब इसको हम प्रेस करते हैं तो ये सिक्यूज होती है, लेकिन जब उसको छोड़ोगे तो अगेन वो उसी शेप में आ जाती है, उसको होता है इलास्टिक मटेरियल, ओके कि मीन्स लाइक अ फ्लेक्सिबल लाइक अ रबड़ की तरह, ओके मीन्स जब उसको प्रेस करते हैं तो क्या वो सिक्यूज होता है फोर्स का, जब उसको लूज करोगे तो अगेन उसी शेप में आ जाता है, वो होता है इलास्टिक मटीरियल, ओके। सो वही यहाँ लिखा है कि रॉक्स आर मेड ऑफ इलास्टिक मटीरियल and so elastic strain energy is stored in them during the deformation that occur due to the gigantic tectonic plate action that occur in the earth। थोड़ा ध्यान से समझिए कि means rocks are made of elastic material, I already told you कि like a rubber and elastic strain energy is stored, और जो इलास्टिक मटेरियल होता है वो एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर, ओके कब करते हैं ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन, जैसे आपकी लाइक वन प्लेट है सेकंड प्लेट है, ओके और गेंगे टू द लार्ज, ये लार्ज आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स है, जब ये सीक्वेंस होंगी एक दूसरे मूव या अपार्ट जाएंगी तो ड्यू टू दैट इनके स्ट्रक्चर में
चेंजेस आ जाएंगी। जब एक दूसरे को हम प्रेस करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगी। ओके, तो ड्यू टू दैट भी सम टाइम जब इसको हम छोड़ेंगे तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। जब प्रेशर जो है रिलीज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी के थ्रू हमारी सेस्मिक वेव्स ऑरिजिन हो जाती हैं, उसके थ्रू हमारे अर्थक्वेक्स ऑरिजिन हो जाती है। ओके, सो रॉक्स आर मेड ऑफ इलास्टिक मटेरियल एंड सो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी is stored in them during the deformation that occur due to the gigantic tectonic plate action that occur in the earth. Okay, so this is your word meaning ki what is the spirit, what is the squeeze, elastic and strain. Okay, so after that earthquakes are caused by sudden release of stress along the fault in the crust. Give me the two plates hai, जब आपस में कोलैप्स हुई या बाई सपोज करो इलास्टिक मटेरियल में एनर्जी स्टोर हुई, जो वो सडनली एनर्जी रिलीज करेगा along द फॉल्ट, फॉल्ट मीन गैप बिटवीन द टू प्लेट्स, जो टू प्लेट्स के बीच में गैप होगा, ठीक है, वो फॉल्ट है क्योंकि जहां हमारा लैंड डाउनवर्ड हो। ओके, जो फॉल्ट इन द क्रस्ट, जब नियर द फॉल्ट आपका प्रेशर रिलीज होगा and due to continuous motion of the tectonic plate stress will it, और ड्यू टू दैट हमारी जो प्लेट्स है वो कंटिन्यूसली क्यों रही है मोशंस में, समटाइम दे स्क्वीज टुगेदर और समटाइम वाइड अपार्ट टू ईच अदर। ओके, सो ड्यू टू दैट स्ट्रेस विल इट हो रहा है इन द रॉक्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द फॉल्ट, फॉल्ट के बोथ साइड। ओके, व्हेन द स्ट्रेस एक्सीड द स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, जब ये स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा इट रिलीज इन द सडन, तभी वो सडनली ये प्रेशर रिलीज हो जाएगा, और जर्क की मोड में झटकेदार, झटके होता है झटके से। ओके, एंड द रिलीज सेस्मिक एनर्जी propagates as waves through the earth and along its surface, and these waves cause shaking that we feel. Okay, propagate means spread, कि मीन्स जो एनर्जी जो अर्थ की प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से फॉल्ट के बोथ साइड जो एनर्जी स्टोर हो रही है सडनली वो रिलीज होगी, और रिलीज होने के जर्की मूवमेंट में झटके से। ओके, एंड और ये सेस्मिक वेव ऑरिजिन हो जाती है और ये ऑल द एरिया में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, और ड्यू टू दैट हमारी अर्थ शेकिंग करना स्टार्ट कर देती है। ओके, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट इनस्टेबिलिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो क्रस्टल इंस्टेबिलिटी। ओके, सबसे बड़ा कॉज क्या है क्रस्ट इंस्टेबिलिटी। आफ्टर डिस्कस कि अपर मोस्ट पार्ट जो है हमारा सॉलिड पार्ट जिसमें हम क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल कंसीडर करते हैं, ठीक है, वो ऑलवेज मूवमेंट रहता है। क्यों मूवमेंट रहता है? बिकॉज उसके नॉर्थ साइड मैग्मा है। ओके, और उसकी वजह से सम टाइम जो प्लेट्स है वो सिक्यूज हो रही है, सम टाइम अपार्ट टू ईच अदर, उससे दूर जा रही है। ओके, और ड्यू टू दैट जो इलास्टिक मटेरियल में एनर्जी स्टोर हो रही है। ओके, और आफ्टर दैट जब एनर्जी स्टोर होती रहेगी फॉल्ट के दोनों साइड, तो वो सडनली जर्की मूवमेंट मीन सडनली क्या होगा, वो झटके से रिलीज होगी और वहां से सेस्मिक वेव्स ऑरिजिन होती हैं, और यही वेव्स जो हैं हमारे अर्थ को वाइब्रेशन ला रही है हमारे अर्थ में। ओके, और टू द अर्थक्वेक्स ऑरिजिन हो रहे हैं। द फर्स्ट पॉइंट क्रस्टल इंस्टेबिलिटी। ओके, सो नाउ आफ्टर डिस्कस हियर volcanic eruption. Okay, so sometime volcanic eruptions also cause many earthquakes, कि मीन्स आपका जो volcanic eruption हो रहा है, सपोज करो दिस योर मैग्मा चैम्बर, जब मटेरियल यहाँ से बाहर आएगा सो एक लार्ज एक्सप्लोजन के साथ मटेरियल सारा बाहर आएगा। ठीक है, जब एक लार्ज एक्सप्लोजन होगा ड्यू टू दैट हम सम टाइम हमारे अर्थ की शेकिंग करना स्टार्ट होती है लाइक दिस। ओके, एंड volcanic eruption also cause many earthquakes. They accompany most of the explosive eruption, बहुत largely great sound के साथ मटेरियल जब बाहर आता है, such earthquakes are said to be volcanic origin. Okay, कि जब वो एक large explosion के साथ मटेरियल they come outside and due to that sometime हमारी अर्थ शेकिंग करना स्टार्ट करती है, वाइब्रेशन करना स्टार्ट करती है, that earthquakes we call volcanic origin earthquakes. Okay, so most of earthquakes caused due to the volcanic eruption are generally shallow origin. मीन्स कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं जनरली जो वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू हो रहे हैं वो ज़्यादा डीप इंसर्ट नहीं होते। ओके, जितना आपका डीप होगा उतने वो लार्ज एरिया को इफेक्ट करेगा, और जितना आपका कम डेप्थ होगी उसकी जो फोकस पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक्स और तो डीप इंसर्ट द अर्थ, ओके, जितना वो शैलो होगा कम होगा
उतना कम एरिया को इफेक्ट करेगा। ओके, अगर डीप है तो एक लार्ज एरिया को इफेक्ट करेगा, अगर शैलो मीन्स जो ज़्यादा डीप ना हो तो वो लेस एरिया को इफेक्ट करेगा। जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं वो ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, ड्यू टू दैट ये ओनली अ स्मॉल और रियरली एक्सीड अ फ्यू हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ही इफेक्ट करता है, मीन्स ज़्यादा एरिया को ये इफेक्ट नहीं करता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, डिस्टर्बेंस ऑफ क्रस्टल बैलेंस। कि सम टाइम हमारी अर्थ में बैलेंस में भी क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है, ऑलवेज अर्थक्वेक्स वही ऑरिजिनेट होते हैं जहां पर टू प्लेट्स आपस में तो मिलेंगी या तो दूर जाएंगी, जो फॉल्ट एरिया होगा, जो गैप होगा बिटवीन द टू प्लेट्स। बट सम टाइम इनसाइड द इनसाइड द प्लेट भी अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट होते हैं। उसके पीछे कॉज क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ क्रस्टल बैलेंस। सम टाइम हमारी जो अर्थ है ये बैलेंस सेम नहीं रहता है, सम टाइम एक साइड वेट ज्यादा हो जाता है, ड्यू टू दैट हमारी अर्थ शेकिंग करना स्टार्ट करती है। वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि डिस्टर्बेंस ऑफ क्रस्टल बैलेंस। द अर्थक्वेक्स में आल्सो कॉज ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द क्रस्टल बैलेंस। ओके, और कैसे, फर्स्ट पॉइंट, accumulation of large amount of water behind the large dam। suppose को this is your dam, just see carefully, ये आपका डैम है और डैम के बिहाइंड एक्यूमुलेट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत बड़ा लार्ज ये वाटर से कवर हो गया। ओके, एंड लार्ज डैम इज कंसीडर एज वन ऑफ द प्रोबेबल कॉज ऑफ सच डिस्टर्बेंस इन द क्रस्टल बैलेंस। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले एरिया क्या स्मूथली था, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हुई तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्ट बिहाइंड द डैम, सो यहाँ पर वेट ज्यादा हो गया, यहाँ वेट लेस हो गया, तो सम टाइम ड्यू टू दैट हमारी अर्थक्वेक अनबैलेंस हो जाती है और उसकी वजह से भी अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट हो जाते हैं। ओके, या सम टाइम ब्रस्टिंग ऑफ डैम, जैसे ये डैम है, इनमें से जब टूटेगा, ब्रस्टिंग ऑफ डैम, डैम का टूटना, तो एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेशर के साथ जब यहाँ गिरेगा तो ड्यू टू दैट सम टाइम हमारे अर्थ की शेकिंग करना स्टार्ट कर देती है। ओके, सो है डिस्टर्बेंस ऑफ क्रस्टल बैलेंस, क्लियर, कि एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बिहाइंड द डैम, और ड्यू टू दिस सम टाइम योर अर्थक्वेक्स आर आल्सो ऑरिजिनेट। ओके, और उसका बेस्ट एग्जांपल जो है अर्थक्वेक्स ऑफ कोयना इन महाराष्ट्र is believed to have been the result of such disturbance। वहां भी डैम की ब्रस्टिंग की वजह से एक माइनर सा अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट हुआ था इन महाराष्ट्र। ओके, सो इज द एग्जांपल ऑफ earthquakes due to the crustal balance। Okay, and now second point of the this point, another reason for such disturbance in the crustal balance may be deposition of a large amount of eroded material in the lowland। कि sometime जब आपकी river flow करती है and they deposit all the material in the low area। okay, this is your even sea या ocean, जब river आएगी they deposit all the material in the depressed area। okay, तो स्लोली यहाँ मटेरियल इतना ज्यादा कलेक्ट हो जाता है कि उसके ऊपर हमारी अर्थ में यहाँ लाइट वेट हो जाती है और यहाँ वेट ज्यादा बढ़ जाता है, और ड्यू टू दैट सम टाइम हमारी अर्थ अनबैलेंस हो जाती है। ओके, तो ड्यू टू दैट भी हमारे अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट हो जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट बी डिस्कस हियर क्रस्टल इंस्टेबिलिटी, सेकंड पॉइंट डिस्कस volcanic eruption, और थर्ड पॉइंट डिस्कस हियर डिस्टर्बेंस ऑफ क्रस्टल बैलेंस। ओके, सो दिस इज योर टॉपिक टू डिस्कस कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। ओके, एंड सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो है आपका क्रस्टल इंस्टेबिलिटी। ओके, एंड volcanic eruption also cause, but due to that minor earthquakes are originated and in fact only few hundred square meter areas। okay, and other disturbance of crustal balance। okay, thank you।